لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمین۔ عزیز محترم ماں اور بہنوں اور عزیز بھائیوں اور تمام ہیرا گروپ کے ممبران، اور میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا چاہتی ہوں جس کے ہاتھ میں تمام خزانے موجود ہیں، اور اس اللہ کی توحید اور اس کی توفیق سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کو لائق اور زیبا ہیں جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں، بارش کے خزانے، آسمان کے خزانے، زمین کے خزانے اور خوشیوں کے خزانے، غمی کے خزانے، اولیات کے خزانے، برکتوں کے خزانے، زندگی کے خزانے، تمام خزانے اس اللہ کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ اور ہزاروں بار درود و سلام نازل ہو اس پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ہمارے تک سچے دین کو اور اسلام کو لا کر پیش کر دیا۔ اور الحمدللہ آج مجھے بات کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کے اس موقع پر جمع فرمایا ہے جو 2016 میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف سے برکتوں والا مہینہ ہمارے سامنے الحمدللہ آیا ہوا ہے۔ اور اس مہینے کی برکتوں کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ فرماتے ہیں کہ اسی مہینے میں ہم نے جو ہے کہ قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اسی مہینے کو ہم نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگوں میں حق اور باطل کو جدا کر کر کے جو ہے کہ بتا دے لوگوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی نیکیوں والا مہینہ ہے، اس میں یہ مہینہ مومنوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا انعام ہے۔ اس مہینے میں ہم سب کا جمع ہونا الحمدللہ یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، میری بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے جو پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ جو زندہ تھے آج وہ لوگ جو ہے مرے ہوئے ہیں، قبروں میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، ہم ان کی گنتی میں گنت نہیں کر سکتے، ہزاروں میں ہوں گے، کروڑوں میں ہوں گے، لاکھوں میں ہوں گے، وہ ہمارے دوستوں میں بھی ہوں گے، ہمارے پڑوسیوں میں بھی ہوں گے، سب لوگ بھی ہوں گے۔ آج بھی ہم اس رمضان میں الحمدللہ رب العالمین سب ملے جلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک ہماری بھی اللہ کے پاس جانے کی خبر آ چکی ہو، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کس وقت جو ہے ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ ضرور سے ضرور چکھنا ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک مکہ مہینے کو پایا اور اس کی قدر کیا اور اس میں اچھی سے عبادت کی اور راتوں میں اللہ سے گڑ گڑایا اور اس کے گناہوں کی معافی مانگا، اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کے پورے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ یہ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے، یعنی ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے پڑوسیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، غربا کے لیے خیرات کرنے والا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تو وہ سخی تھے ہی، عام دنوں میں تو وہ خیرات کرتے ہی تھے، عام دنوں میں تو لوگوں پہ بہت رحم دل تھے، مگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے خیرات کرتے تھے جیسے کہ تیز آندھی آسمان سے آتی ہے، تیز بارش آسمان سے پڑتا ہے، اس طرح سے کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو بندہ روزے دار ہوتا ہے، جس بندے کو روزے کا اختیار کراتے ہیں، چاہے ہمارے اختیار کراتے ہیں، تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے برابر کا اجر جو ہے اختیار کرانے والے کو بھی ملتا ہے، سحری کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس
तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम किसी को रोजे का इख्तियार कराएं, हमारे घर में कोई ताकत ही नहीं है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तियार कराने का मतलब ये नहीं है कि उसको पेट भरकर खाना ही खिलाया जाए, उसको बहुत ज्यादा चीजें ही दिया जाए, मगर इख्तियार कराने का मतलब ये है कि एक खजूर का टुकड़ा भी जो है उसको अगर तुम खिला दो तुम्हारी हैसियत के मुताबिक, अगर एक बॉटल पानी भी तुम उसको पिला दो तो तुमको भी उतना अजर मिल जाए। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह के खजाने में स्वाब के देने की कोई कमी नहीं है। वो खजूर खिलाने वाले को भी उतनी नेकी दे रहा है, खाना खिलाने वाले को भी उतनी नेकी दे रहा है, सहरी कराने वाले को भी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहे हैं। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जो है सबसे बड़े ताकत और कुव्वत वाले हैं, वो रब्बुल आलमीन चाहते हैं तो राई के दाने की बराबर की नेकी को कल क़यामत के दिन पहाड़ों के बराबर बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं तो राई के दाने की बुराई को भी वो पहाड़ों के बराबर बना सकते हैं। अल्लाह का बेहद एहसान है कि हमने आज जो है यहाँ पर इफ्तियार पार्टी के नाम से जो है और इसी हदीस मुबारका के ऊपर अमल करते हुए, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को रोजे का इफ्तियार करा दो या कुछ भी करा दो उसके बराबर जो है अजर है, मगर ये नहीं कहा कि सिर्फ गरीब को ही कराना इफ्तियार नेकी है, मालदार को कराएंगे तो नेकी नहीं, बल्कि रोजेदार कहा गया है, बल्कि जो बंदा रोजा रखा है उस रोजा रखने वाले को इफ्तियार करा दो तो अच्छा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पड़ोस में गरीब है, अगर हमारे सामने गरीब है, हमारे रिश्तेदारों में गरीब यतीम है, तो उन सब के लिए जो है हमको खास कर से ख्याल रखना जो है बहुत ही जरूरी है अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के अंदर। तो खास कर से हीरा ग्रुप ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश की है कि हर साल रमजान में हीरा ग्रुप अपने मेंबरान इंटरनेशनल में जहाँ भी होते हैं, अमेरिका, कनाडा, दुबई और कोई जैसे भी गल्फ कंट्रीज में जितने भी और इंडिया के मुख्तलिफ मुकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप अल्लाह के फजल करम से इस बुनियाद के ऊपर इफ्तियार पार्टी को जो है इंशाअल्लाह रखती है ताकि सुन्नत भी जिंदा हो जाए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी जो है कि वो आगे बढ़ जाए, लोगों को जो है कि इस बात का पता भी हो जाए। तो सुभान अल्लाह, इस खुशी के मौके पर साल में एक बार हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह मिलने का मौका रहता है। और खास कर से मेरे भाइयों और बहनों कि मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में हमारे मुख्तलिफ जगहों पर 30 से 40 से 50 इफ्तियार पार्टियां होते हैं, तो उसमें सारे जगह पर जो है मुझे जाना, वहाँ पर अटेंड करना, बैठना जो है मुश्किल होता है, मगर मैं एक मैसेज जो है तुम सब तक इंशाअल्लाह पहुँचाने की कोशिश करती हूँ अल्लाह के फजल करम से कि आप सबका यहाँ पर आना और बैठना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ी तो खुशी की बात है। और खास कर से हीरा ग्रुप की जो बुनियाद है वो अल्लाह की तौहीद पर और तवक्कल पर रखी गई है। हीरा ग्रुप की बुनियाद ना किसी मालदारी के भरोसे पर, ना किसी बैंकिंग के भरोसे पर, ना किसी गवर्नमेंट के भरोसे पर, फलां भरोसे पर नहीं। जिस दिन से भी ये ग्रुप हुआ उस दिन से इसकी एक ही आवाज है कि सुभान अल्लाह, ये ग्रुप जो है अल्लाह की जात के भरोसे पर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो भी काम होगा वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही होगा। और जो भी काम होगा, जितना भी आप चेक करेंगे फर्स्ट से लेकर ए से लेकर जेड तक, तो इसके अंदर टोटल इस्लामिक राइट्स रहेंगे, इस्लामिक फंडामेंटल रहेंगे, इस्लामी कानून रहेगा। और जैसे बिजनेस का करना है, तिजारत का करना है, तो कौन सी चीज खरीदना हलाल है वही हीरा ग्रुप खरीदेगी, कौन सी चीज बेचना हलाल है वही चीज बेचेगी। जो इस्लाम में खरीदना भी हराम है, बेचना भी हराम है, हीरा ग्रुप वो प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगी ना बेचेगी। मीन्स जैसे हीरा ग्रुप ने पिछले सालों में कुछ प्लान किया 5 स्टार होटल चलाने का। जब 5 स्टार होटल चलाना है तो उसमें बार रखना जरूरी है, शराब रखना जरूरी है, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह काट दिए। क्यों? सिर्फ ये अल्लाह के हुक्म के लिए उतने बड़े प्रोजेक्ट को जो है स्टॉप कर दिए, क्योंकि उसमें हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ नहीं सकते। सुभान अल्लाह। और हीरा ग्रुप जो है, दूसरी बात जो है कि इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड है, यानी लोगों को जो है सूद से बचाने के लिए इस ग्रुप को शुरू कर दिया गया है। जैसे कि हम बचपन से सुने आते थे कि उलमा इकराम कहते थे कि सूद से बच जाओ, सूद से बच जाओ, सूद जो है लानती चीज है, उसमें लोग एक बार गट जाएंगे तो फिर जो है कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। सूद पे सूद लोग देते देते कोई फांसियों पे चढ़ के मर जाते हैं, कोई जो है अपने बीवी बच्चों को जहर दे के मर जाते हैं, खरदार हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुनते आ रहे थे। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने मेरे दिल में ये बात डाली थी कि क्यों मैं ना ऐसा एक ग्रुप शुरू करूं कि जो लोगों को जो है
हम सूद से बचाया जाए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जिसमें हमारे मुसलमान बहुत सारे अल्लाह के फजल से इस ग्रुप में मेंबर बने। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने बेहद जो है बरकतें भी अता किया उसके फजल करम से। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखती हूँ कि क़यामत के सुबह तक भी जो है ये कंपनी को अल्लाह वालों को अल्लाह ताला पैदा करेगा। और अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू इतने बड़े ताकत वाले हैं, जब वो कोई काम लेना चाहते हैं तो उसको इंसान की ही जरूरत नहीं बल्कि एक मच्छर से भी अल्लाह काम ले सकते हैं, इतने बड़े कुदरत वाले हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू के कुदरत में कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सारे ग्रुप को जो है मैं रन कर रही हूँ, मैं चला रही हूँ, मेरे अंदर ये है टैलेंट, मेरे अंदर वो है। ये जितने भी टैलेंटें दिया है वो अल्लाह की तरफ से है, ये जितने भी सलाहियतें दी है वो अल्लाह की तरफ से है, ये जितने भी कामयाबियां सक्सेस हो रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से है। ये मेरे अल्लाह ने ही जो है ये कामयाबी देना है, सक्सेस देना है, दिमागों में बात डालना, आप सबको मुझसे जुड़ाना। कहाँ पर कौन से कंट्री में कौन लोग बैठे हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो हीरा ग्रुप को जानते हैं। दुनिया के अंदर 240 कंट्रीज है, 240 कंट्रीज में भी अल्लाह के फजल करम से हीरा ग्रुप को लोग किसी ना किसी तरह से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से आज इख्तियार पार्टी में भी हमारे तैयब सेलर अल्लाह के फजल से हमारे जितने भी जो मेंबर हैं और जितने हमारे स्टाफ हैं, जितने हीरा ग्रुप को सपोर्ट करने वाले हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह ये इख्तियार पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होते हैं। मैं उन सबको मुबारकबादी पेश करती हूँ क्योंकि एक इस्लामिक कंपनी में आप अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। और इस्लामिक कंपनी का मतलब है बहुत सारे लोग जो है इसको मजाक करने वाले भी आते हैं और इसमें ताने देने वाले भी आते हैं और इसमें नाम रखने वाले भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त यही चैलेंज करती आई हूँ कि इंशाअल्लाह किसी भी दुनिया के किसी भी मैदान में आप बुलाकर मुझे खड़ा करेंगे और पूछेंगे क्या तुम ये जो काम कर रही हो क्या ये शरीयत के लाइन से हलाल है, तो सारे तो प्रूफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के पास भी दे सकती हूँ और आपके पास भी इंशाअल्लाह दे सकती हूँ। और मुझे यकीन है कि ना हमने अल्लाह के कानून को क्रॉस किया है ना किसी कंट्री के कानून को क्रॉस किया है, चाहे वो यूएई क्यों ना हो, चाहे चाइना क्यों ना हो, चाहे कनाडा क्यों ना हो, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, चाहे घाना क्यों ना हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, हमने वहाँ के गवर्नमेंट के सारे कवानीन की जो है पाबंदी करते हैं। और इंशाअल्लाह जैसे इंडिया में रहते हैं तो वहाँ के गवर्नमेंट की पाबंदी करते हैं। जहाँ भी हम कोई इलीगल काम जो है हीरा ग्रुप आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया है अल्लाह के फजल करम से। अब लोग क्या है वहाँ पर आए छोटे बात में, तो मैं खाली 2 मिनट में एक बात आपको समझाना चाहती हूँ। छोटी बात में आप नेट पे जो है वहाँ पर ये डाल दिया है हीरा ग्रुप के बारे में, तो नेट पे डालना तो आजकल बहुत ईजी है। आप एक गरीब फकीर को ला के खड़ा करो, नेट पे एक कार्ड ओपन करके बोलो कि ये 1000 करोड़ का मालिक है, तो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बड़े अमीर को ला के बोलो कि ये जो है 500 का भी मालिक नहीं है, तो इजीली 1 मिनट में अभी यहाँ पर बैठ के हम क्रिएट करके जो है वो डाल सकते हैं। आज नेट के ऊपर भरोसा करना, नेट के बातों को जवाब देना, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इंशाअल्लाह मैं हमारे मेंबर को जो है काफी लोग अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा करते हैं, मगर कुछ लोग हजारों में से एक हमें सवाल करते हैं इस बात का। तो मैं ये बात को भी क्लियर करना चाहती हूँ कि नेट के ऊपर जो भी बातें आते हैं, नेट के ऊपर क्या होता है, आप छोटा सा एक आप शाप रखिए, वो शाप के लिए भी 10 दुश्मन होते हैं, अड़ोस वाले पड़ोस वाले सब। जब इतना लीगल वे में इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, इतना टॉप पे जाके हम काम कर रहे हैं और खास करके मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, तो जाहिर से बात है कि लोग तरह की चीजें इसके लिए क्रिएट करेंगे, कि इसके लिए बनाएंगे और खास करके इसके लिए सोचेंगे बहाने बनाने के। मगर आप लोगों को सुभान अल्लाह इसके ऊपर यकीन होना चाहिए, इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब भी आपकी कमाई आपके लिए हलाल हो सकती है कि जिस कंपनी से आप बिजनेस के लिए जुड़े हो उस कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा करें आपके ये सही काम कर रही है, ये सही बिजनेस कर रही है, ये सही तिजारत कर रही है। जब तक ये पूछते नहीं है, और हीरा ग्रुप में किसी को कोई तंगी की बात नहीं है। हीरा ग्रुप ने आज तक कभी भी किसी को कोई पैसे का धोखा नहीं दिया। हीरा ग्रुप ने कभी किसी से जो है ना कोई डिपॉजिट करवाया ना कोई इन्वेस्टमेंट लिए। हीरा ग्रुप सिर्फ जो है ट्रेड करती है अपने मेंबर्स के साथ, और जो फायदा आता है वो अपने मेंबर्स को अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम करती है अल्लाह के फजल करम से। जब भी मेंबर जाना चाहे उसको उसी मिनट में उसका पेमेंट देके वापस करती है। कभी भी कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि इसमें कोई किसी तरह का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो खास करके मैं आपको ये चंद बातें बताना चाहती हूँ क्योंकि आज खुशी का मौका है। आज हम लोग इख्तियार पार्टी में जमे ही, ये टॉपिक भी नहीं है, मगर फिर बार बार मौका नहीं मिलता कि आपके लिए भी कामयाबी और कंपनी के लिए भी कामयाबी। और सुभान अल्लाह 20 साल से हमारा ग्रुप अल्लाह के फजल करम से जो है इंटरनेशनल में चल रहा है। तो 20 साल से इंटरनेशनल में ग्रुप का चलना कोई आसानी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से इंडिया में भी
मुख्तलिफ जगहों पर हमारे ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हमारे फूड प्रोडक्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अल्लाह के फजल से मिनरल वाटर का प्रोजेक्ट क्यों ना हो, फूडेक्स का प्रोजेक्ट क्यों ना हो, ज्वेलरी का प्रोजेक्ट क्यों ना हो, गोल्ड का क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा है। और इसको हम एक शॉप के तौर पे नहीं कर रहे हैं कि एक जगह छोटी शॉप में फूडेक्स रख के बैठ गए हैं, और हम ज्वेलरी को भी जो है एक जगह पर सुनार जो है शॉप खोल के बैठ गया है बस छोटी से, ऐसा नहीं। हम लोग इसको जो है इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल में कर रहे हैं। आप जब HiraJewelry.com पे जाके चेक करेंगे और देखेंगे तो मोर देन 10,000 से ज्यादा डिजाइन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है अल्लाह के फजल से। और इंशाअल्लाह जो है ऑनलाइन के ऊपर जो हीरा डील्स भी शुरू करे तो उसके अंदर भी मोर देन 40,000 प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंशाअल्लाह परचेज भी कर सकते हैं। और बाकी इन सारे चीजों का सर्कुलर होना, इन सारे चीजों का चलना और इन सारे चीजों के लिए बैंकिंग के ट्रांजेक्शन होना, खरीदना बेचना, इसमें काफी रिस्की मामले आते रहते हैं। जैसे रिस्की मामले आते रहते हैं तो सीईओ की जिम्मेदारी होती है कि उन मामलात को जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल करे, आपको भी हैंडल करे, स्टाफ को भी हैंडल करे, उन हालात को भी हैंडल करे, वो उसकी जिम्मेदारी होती है खासकर से। उस हालत में जब से कोई छोटा न्यूज पेपर में आ गया या कोई छोटी बात न्यूज में छाप दिए तो शुरू हो जाते हैं कि न्यूज में ये बात आ गई। सब लोग नहीं बल्कि कुछ लोग। मैं इसीलिए कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान रखिए, अल्लाह के फज़ल से जो है आज आप सबका जमा होना बड़ी ही खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और खास करके मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग सब के सब जो है इंशाअल्लाह इस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे और अच्छे इरादे के साथ, इखलास के साथ जुड़े रहेंगे। अगर इरादों में कुछ कमी भी है तो उसको भी दूर करके अपने इरादों को जो है इंशाअल्लाह पाकीज़ा कर लेंगे। जैसे किस तरह से हो गया, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, बहुत सारे लोग बहुत सवाल करते हैं। तो सुभान अल्लाह, मैं हर बार भी वो अल्लाह के वो आयतों की दलील देती हूँ। जब मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बिन मौसम के फल थे तो बिन मौसम के फल तरह तरह के पड़े हुए थे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में आके पूछते ही कि ऐ मरियम, ये मेरे तेरे पास कहाँ से आएगी, जबकि अभी मौसम नहीं है, फलों का दिन भी नहीं है, मगर ये मेरे कैसे आए हुए तेरे पास। तो सुभान अल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देते ही ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोज़ी अता करते हैं, अल्लाह जिसको चाहते हैं बेहिसाब रिज़्क़ अता करते हैं। तो सुभान अल्लाह, जो भी हीरा ग्रुप से जुड़े हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बेहिसाब रोज़ी अता कर रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, जिन्होंने ये नियत किया कि हमने सूद से बचना है, हमको जो है इस्लामी तरीके से कमाई कमाना है, हलाल रोजी के तरीके से कमाई कमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको बरकतें दे रहे हैं, उनके पैसों की भी अल्लाह हिफाजत कर रहे हैं, उनकी माल की भी अल्लाह ताला हिफाजत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, आज तक भी इतने ट्रांसफर होने के बाद भी, इतने सारी चीजें होने के बाद भी कहीं भी अल्लाह ने हमारा जो है कोई लाश नहीं करवाया, रब्बुल आलमीन ने कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस माल के ऊपर ज़कात निकाला जाता है वो माल कभी भी नुकसान नहीं होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा, कभी धोखे में नहीं होगा। अब जो लोग ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका माल किसी ना किसी तरह से लाश में ही जाएगा पूरा साल। कभी हमको पता नहीं चलता कि हम तो सोचते हैं कि ज़कात के थोड़े पैसे हमने बचा लिए और बैंक में बैलेंस कर लिए, मगर एक बच्चा बीमार होता है उसके डबल पैसे खर्च हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। और ये चोर आता है माल उठा के लेके जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो लोग ज़कात निकालते हैं उनके मालों में सिर्फ बरकत ही बरकत होती है। सुभान अल्लाह। और उनके माल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले लिया। जो लोग ज़कात निकालते हैं और उनकी माल की जिम्मेदारी जो है अल्लाह ने ले लिया। हीरा ग्रुप इनकम टैक्स भी पे करता है और इस्लामिक तरीके से ज़कात भी निकालता है। उसके इनकम के ऊपर जो ज़कात होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़कात भी अल्लाह के फजल से हीरा ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात भी निकालता है। तो ये बात कहते हैं तो हमारे मेंबर सवाल करते हैं आपा, क्या हमारी भी कमाई का आप ही टैक्स भर रहे हो, क्या हमारी भी कमाई का तुम ही ज़कात पे कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। जो 60% कंपनी का जो कमाई होती है उस पर कंपनी पे करती है, जो 40 आपको जो मिलता है उस पर आपको पे करना होगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के फजल करम से जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी हमेशा हलाल तरीके से अपनी कंपनी को जो है रन करने की कोशिश की है और इसमें जितने भी अहकाम होंगे
अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकाम होंगे। अभी हमारे हाल में एक भाई ने जो है कितना बड़ा लंबा 10-11 पेजेस का एक फतवा मुझे भेजे थे कि हीरा ग्रुप के बारे में ये फतवे में ये बात है, वो फतवे में वो बात है। और जो वो फतवा जब मैंने पढ़कर देखी तो जिसमें ना कोई कुरान की दलील है ना कोई हदीस की बात है। मगर हीरा ग्रुप हमेशा दलील को मानती है, जो कुरान और हदीस के साथ ऑथेंटिक जो बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह उसके सामने हमेशा कभी भी सर झुकाने के लिए तैयार है और उस बात को मानने के लिए तैयार है। जो बाहर के हजार बातें हमारे मौलाना के दिल में ये बात है, फलाना ख्याल है, हमारे बड़े ये सोच कर ऐसा बता रहे हैं कि एक औरत ये नहीं कर सकती है, बहुत सारी बातें, मगर जो है उसके लिए कोई इस्लाम में दलील नहीं है। तो ऐसी बातों को हीरा ग्रुप में कोई जगह नहीं है। और हीरा ग्रुप में उन बातों को जगह है जो कुरान और हदीस में ऑथेंटिक और दलील वाली बातें होते ही अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप अल्लाह के फजल से उन्हीं चीजों पर जो है अमल करती अल्लाह के फजल से जा रही है। अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, इसीलिए इस कंपनी में जो है सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बरकत दिया। हजारों बेवाओं की जिंदगियां, हजारों यतीमों की जिंदगियां, हजारों गरीबों की जिंदगियां, हजारों स्टाफ की जिंदगियां, हजारों लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घर चलने का एक जो है अल्लाह के फजल करम से जो है इसको जरिया बना दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते भी होंगे या ना चाहते होंगे, मगर जो पब्लिक है सुबह शाम इसके लिए दुआ करती रहती है। मेरा सोचना है, मेरा थिंक है कि मेरे ख्याल से सुबह से लेकर शाम तक, शाम के से लेकर सुबह तक, वरना मिनट कोई ना कोई दुआ ही करते होंगे, कोई ना कोई दुआ ही करते होंगे, जो स्टाफ ही नहीं होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। क्योंकि मैं खाली मेल ही चेक करती हूँ तो एक दिन में जो है अभी रमजान आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चेक किया कि 1000 से 1500 2000 ईमेल तक ये आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हीरा ग्रुप की बरकत से हम उम्रे पे जा रहे हैं रमजान के महीने में, जो हमने कभी उम्रे को जाने का सोचा भी नहीं था। और हजारों मेल आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर नहीं था, अल्लाह के फजल से अब हमारा घर हो गया। और हजारों मेल आते हैं हमारे बच्चे को पढ़ाई नहीं पढ़ाते थे, आज हमारे बच्चे को जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ाई कर ली अल्लाह के फजल करम से। और वो भी इतना सुकून से कहते हैं कि खास करके जो है हमको दिल को इत्मीनान है, इसको हमको जैसे हीरा ग्रुप में हमने ज्वाइन किया हमको दिल को सुकून मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो मैं यह देखकर समझती हूँ कि जब मेल ही 24 घंटों में 5 मिनट में इतने मेल आते हैं, तरफ से दुआएं करने वाले भी 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआएं करने वाले भी होंगे, उन सब में आप लोग भी शामिल होंगे जो यहाँ हाजिर हुए अल्लाह के फजल करम से। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखती हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छी नीयतों के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह की जात को मजबूत से पकड़े रहेंगे और अल्लाह की तौहीद पर आप जो है कायम रहेंगे। और हर बात का कमाई का देना, गमाई का देना, नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू है। अल्लाह सूरह बकरा में फरमाते हैं हम जिसको चाहे सल्तनत दे दे और जिससे चाहे छीन ले, कौन है जो मैं छीन लूं तो देने वाला, मैं दूं तो छीन लेने वाला? जमीन पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जिसको अल्लाह चाहे सल्तनत दे दे, जिसको अल्लाह चाहे छीन ले तो कोई भी नहीं है। अल्लाह खुद से कुरान मजीद में हम सबको सवाल करते हैं कि कौन है तुम्हारा बादशाह जो दिन को रात में बदलने वाला और रात को दिन में बदलने वाला? कौन है वो बादशाह जो तुम्हारा दिन को रात में बदलने वाला और दिन को जो है कि रात में बदलने वाला? अगर अल्लाह तुम्हारा चाहे तो क़यामत के सुबह तक अगर रात को रात ही रख दे तो है कोई सूरज को निकालने वाला नहीं है। अल्लाह चाहे तो सूरज को दिन ही रख दे और क़यामत के सुबह तक कोई है रात लाने वाला कोई भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हमको अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि रब्बुल आलमीन ने जो है इस ग्रुप को इंशाअल्लाह इस तरह से जो है अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने आगे बढ़ने की जो है इंशाअल्लाह पूरी की पूरी कोशिश अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने किया है। और खास करके जो है कि इंशाअल्लाह इस रमजान मुबारक के महीने में खास करके आप सब इंशाअल्लाह इबादतें ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। जैसे अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बेशक लैलतुल क़द्र की रात में हमने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया है और वो रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। वो रात में रहमत के फरिश्ते आसमान
से जमीनों से उतर जाते हैं और वो फरिश्ते मगरिब से लेकर सुबह तक रहते हैं। और जब हम हदीस में जाते हैं देखते हैं तो अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर किया है कि आखिरी अशरे के 10 रातों में जो है इस रात को जो है कि तुम तलाश करो इंशाअल्लाह। तो मेरी बहनों और तमाम हमारे हिंदी और डीएसए और हमारे जिला ग्रुप के मेंबर और हमारे स्टाफ से मैं गुजारिश करती हूँ कि इन प्यारे रातों में इंशाअल्लाह जिला ग्रुप के लिए दुआ करें और इंशाअल्लाह हमारे सारे के लिए अल्लाह ताला से